السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ پاکستان میں کورونا کے وار کم ہونے کے بجائے مزید تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 45,898 تک جا پہنچی، جبکہ 985 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,962 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 4,14,962 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 1,932 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب میں 16,685، سندھ میں 17,957 اور خیبر پختونخوا میں 6,554، بلوچستان میں 2,885، اسلام آباد میں 1,338 اور گلگت بلتستان میں 556 اور آزاد کشمیر میں 133 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں 2 ماہ کی بندش کے بعد مسافر ریل گاڑیوں کا آپریشن شروع ہو گیا۔ مسافروں کو آن لائن بکنگ سے ٹکٹ ملیں گے۔ ماسک، سینیٹائزر، دستانے اور صابن اپنے ہمراہ رکھیں گے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی ہوگا۔ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر مسافر بوگیوں کے اندر جراثیم کش اسپرے کیا گیا اور بوگیوں کی صفائی اور دھلائی بھی کی گئی۔ ٹرینز میں بکنگ صرف آن لائن کی جا رہی ہے اور ریزرویشن دفاتر بند رہیں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے 200 میٹر تک کے علاقوں کو غیر ضروری افراد کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشنوں پر سینیٹائزر واک تھرو گیٹ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ٹرین کے سٹاپ والے اسٹیشنز پر میڈیکل آفیسر اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے سٹاف تعینات ہے۔ دوران سفر تمام مسافروں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا، جبکہ مسافروں کو ماسک پہننے، سینیٹائزر، دستانے اور صابن اپنے ہمراہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے ریل سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے SOPs متعارف کروا دیے ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ SOPs کی خلاف ورزی پر 500 روپے، دوسری مرتبہ 1,000 روپے جرمانہ اور تیسری مرتبہ خلاف ورزی پر مسافر کو اگلے سٹاپ پر ٹرین سے اتار دیا جائے گا۔ ٹرینوں کے سٹاپ بھی مختصر کر دیے گئے ہیں۔ پشاور کے ریلوے اسٹیشن ایک بار پھر آباد ہو گئے۔ 2 ماہ کے بعد 3 ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے ساتھ عدنان شاہد موجود ہے۔ عدنان، بتائیے گا ٹرین کی ٹائمنگ کیا ہے اور انتظامات کیسے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں بلا آخر 2 ماہ بعد جو ہے کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر ریلوے جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی، مگر اب عید الفطر آنے سے قبل ہی پشاور کے شہریوں کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے کہ پہلی جو خصوصی طور پر جو 3 ٹرینیں ہیں وہ آج سے ان کی سروس جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں سے ہی پہلی ٹرین جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کریں تو باقاعدہ طور پر 3 ٹرینیں جو ہیں وہ آج چلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جعفر ایکسپریس جو کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ جو دوسری ہے وہ عوامی ایکسپریس ہے، وہ رات 10 بجے نکلے گی، جبکہ آخری جو ہے وہ خیبر میل رات کو 11 بجے کینٹ اسٹیشن سے کراچی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ ایک بڑی تعداد میں جیسے ہی ریل کی سروس شروع ہوئی تو شہریوں نے بھی ریلوے اسٹیشنز کا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے، مگر یہاں پر جو ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے یہاں کے جو SOPs ہیں وہ کافی بہترین دیکھنے میں آ رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی یہاں کے جو عملہ ہے وہ اپناتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت میں کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتایا، اگر یہاں کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو جو مسافر ہیں وہ سب سے پہلے اس گیٹ سے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ سینیٹائزر گیٹ بنایا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اسپرے کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر لیڈیز ہوں گی تو ان کی چیکنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہی ان کو یہاں سے گزرنے کے بعد اس دوسرے کاؤنٹر پہ آنا ہوگا۔ یہاں پر جو ہے ان کی اسکریننگ کا عمل ہوگا، جس کے لیے باقاعدہ طور پر کاؤنٹر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آگے 3 مزید جو ہے وہ کاؤنٹر ہے، کیونکہ یہاں سے جو ٹکٹ کی وصولی ہے ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، صرف آن لائن ٹکٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سوشل ڈسٹنس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر جو ہے رسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو عملہ ہے یا جو مسافر ہوں گے وہ یہاں سے گزریں گے تو ان کے ڈسٹنس جو ہے وہ برقرار آ سکے۔ اسی طرح سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ SOPs کا بھی خاص طور پر جو ہے
ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. مسافر جو ہیں وہ بھی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عید الفطر ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے آبائی گھروں کی طرف جاتے ہیں, تو یہ ایک اچھی سروس ہے. اور لوگ جو ہیں کیونکہ جب ہم اپنا خیال رکھیں گے تو دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے, تو لوگ جو ہیں وہ ادھر کافی جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شکریہ عدنان شاہد. سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سندھ حکومت نے شاپنگ مال کھولنے کی اجازت دے دی ہے. عدالت عظمیٰ نے حکم دیا تو سندھ حکومت نے بھی شاپنگ مالز کو SOPs پر عمل درآمد سے مشروط طور پر کھولنے کی اجازت دے دی, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. شاپنگ مالز میں موجود بیوٹی پارلر اور سیلون کے ساتھ گیم, پلے ایریا اور فوڈ کورٹ بدستور بند رہیں گے. دکانیں جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلی رہ سکیں گی, جبکہ اوقات کار کی پابندی صبح 8 تا شام 5 بجے بدستور قائم رہے گی. شاپنگ مالز میں خریداروں کو ماسک کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. شاپنگ مالز کے داخلی راستوں پر آنے والوں کو ہینڈ سینیٹائزرز مہیا کیا جائیں گے, جبکہ تھرمل گن سے اسکریننگ لازمی کی جائے گی. اس کے بغیر داخلہ ممنوع ہوگا. کورونا وائرس کی علامات والے لوگوں کو شاپنگ مال میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. بچوں اور بچپن سے سال سے زائد عمر والوں کو شاپنگ مالز میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کراچی کے احکامات کے بعد شاپنگ مالز اور مختلف مارکیٹ کھل گئی, جہاں لوگوں کے لیے مارکیٹس کے باہر ہینڈ سینیٹائزر گیٹ اور سماجی فاصلے کے لیے انتظامات کیے گئے. رپورٹ کریں گے شہزادہ معین. کراچی میں مختلف شاپنگ مال کھلنے کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد شاپنگ کے لیے مارکیٹ کی جانب رخ کرنے لگی, جہاں مختلف شاپنگ مال کے باہر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے. خریداری سے قبل خریداروں کو سینیٹائزر گیٹ سے بھی گزرنا پڑ رہا تھا, جبکہ دوسری جانب لوگوں کے رش کے باعث مختلف مارکیٹوں میں SOPs کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا تھا. شہزادہ معین, سچ ٹی وی, کراچی. سندھ حکومت نے ڈبل سواری پر پابندی کے احکامات جاری کر دیے. ہوم ڈپارٹمنٹ کے حکم نامے کے مطابق صرف گھر کے افراد, خواتین, بچے اور عمر رسیدہ کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا, جبکہ صحافی, میڈیا رپورٹر, پولیس, رینجرز, سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین پر پابندی برقرار ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق پابندی کی تشریح بھی کی جا رہی ہے. ایسی پابندی کی وجہ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. پنجاب میں شاپنگ مال اور پلازا صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. فوڈ کورٹ, سٹال, ریسٹورانٹس, پلے گراؤنڈ وغیرہ بند رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے کورونا کنٹرول کا اجلاس صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت ہوا, جس میں پنجاب میں شاپنگ مال اور پلازے صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا, جبکہ فوڈ کورٹ, ریسٹورینٹس اور پلے گراؤنڈ وغیرہ بند رہیں گے. ریسٹورینٹس عید کے بعد کھلیں گے, دن اور اوقات کا تعین بعد میں ہوگا. دکانیں, کاروبار اور مارکیٹیں بھی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھولی جائیں گی. کورونا کی وجہ سے پولیس کے اہلکاروں کو دوران بیماری خصوصی الاؤنس, جبکہ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو شہداء پیکج ملے گا, جبکہ پرہجوم مقامات پر منہ ڈھانپنا لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. کورونا ڈیوٹی والے ڈاکٹروں اور ہیلتھ پروفیشنلز کا تعین کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی تصدیق پر کورونا ڈیوٹی کرنے والے ہیلتھ پروفیشنلز کو اضافی تنخواہ بھی دی جائے گی. کیمرامین محمد مبشر کے ساتھ سید وقار حسین, سچ نیوز, لاہور. 24 مارچ سے بند ریل گاڑی کا پہیہ پھر چلنے لگا. طویل بندش کے بعد انتہائی سخت SOPs کے ساتھ ٹرین آپریشن بحال کر دیا گیا. لاہور اسٹیشن پر اس وقت کیا صورتحال ہے بتائیں گے نبیل نقوی. بتائیے گا نبیل نقوی. جی بالکل 24 مارچ کو بند ہونے والا ٹرین آپریشن بالآخر آج 20 مئی کو جو ہے وہ جزوی طور پہ بحال کر دیا گیا ہے. شیخ رشید احمد صاحب کی جو کوششیں تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے آج کے دن سے جزوی طور پہ ٹرین آپریشن بحال کر دیا گیا. اگر میں آپ کو لاہور ریلوے اسٹیشن کی صورتحال بتاؤں تو ریلوے کے انتظامیہ کی جانب سے یہاں کافی بہتر انتظامات کیے گئے آنے والے مسافر حضرات کے لیے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرامیڈیکل اسٹاف بھی یہاں موجود ہے, سینیٹائزرز یہاں رکھے ہوئے ہیں, ماسک یہاں رکھے ہوئے ہیں, گلوز یہاں رکھے ہوئے ہیں آنے والے مسافروں کو جو مہیا کیے جائیں گے. اگر اس کے بعد جب مسافر حضرات لاہور اسٹیشن میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے سیکیورٹی کی جانچ پڑتال کے بعد ان کے انٹرنس کے لیے جو یہاں پہ پاتھ بنا دیا گیا ہے, مکمل طور پہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں مکمل طور پہ ٹیپس لگا کے باقاعدہ یہ واضح کیا گیا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے جو SOPs جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب یہاں سے مسافر حضرات یہاں پہ مکمل ان کی طبی جانچ پڑتال کے بعد مسافر حضرات کے لیے یہاں پہ آٹو سینیٹائزنگ گیٹس کے بھی اہتمام یہاں پہ پاکستان ریلوے
पासिंग गेट्स यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे की जानिब से लगाए गए हैं। आज पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो 30 अप एंड डाउन ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिनमें कराक्रम एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है और सकर एक्सप्रेस समेत ये वो ट्रेनें जिन पर जो है मुसाफिर हज़रात का काफ़ी रश था। क्योंकि ईद का अयाम करीब है तो ईद के अयाम चल रहे हैं, मुसाफिरों को एक हंसी खुशी का हमें देखा है कि मुसाफिरों में काफ़ी जो है खुशी है। शेख रशीद अहमद साहब ने बहुत बर वक्त फैसला किया और खास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि DS रेलवे जो है लाहौर के वो आए, उन्होंने मुकम्मल यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई और इंतजाम का जायजा भी लिया। जी बहुत शुक्रिया रबील नकवी। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मार्केट्स और बाजारों में शहरियों का बेपनाह रश बढ़ रहा है। शहरी और ताजिर मार्केट्स में कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। ईद में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। दिन ब दिन बाजारों में शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। नारकली बाजार, लिबर्टी मार्केट, इशरा बाजार समेत लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। बाजारों और मार्केटों में शहरी और ताजरान यकसा तौर पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर रहे हैं। ताजर कायदीन की जानिब से मार्केट और बाजारों में कोरोना से बचाव के सर्कुलर भी जारी करने के बावजूद लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद समाजी फासले को नजरअंदाज करके खरीदारी करने लग गई। शहरी कहते हैं कम वक्त होने के बाइस ईद की खरीदारी जल्द करने की गर्ज से बाजारों में आते हैं। ईद करीब है, बच्चों की खरीदारी करना उनकी मजबूरी है, जबकि बाजारों में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने वाली कमेटियां भी बेबस दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। उन्होंने पूछा कि कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी कैसे आ जाता है। तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान को हर चीज में खुद मुख्तार होना होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना अज खुद नोटिस की समाअत की। अटार्नी जनरल ने कहा कि कोरोना से मुतल्लिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन NDMA अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं है, हमारी तशवीश सर्विसेज के म्यार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करंटीना सेंटर्स में वाशरूम साफ नहीं होते, पानी नहीं होता, 10-10 लोग एक साथ बैठे होते हैं। सोशल मीडिया पर करंटीना सेंटर्स की हालत इज़हार की वीडियोस चल रही हैं। मरीज वीडियोस में तारकीन वतन को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना आए, हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी मईशत का शुमार अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया से किया जाता है, ताहम हम पैसे से खेल रहे हैं और लोगों का एहसास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चाइना में एक ही पार्टी NDMA को सामान भिजवा रही है। मकामी सतह पर सामान की तैयारी के लिए एक ही मशीन मंगवाई गई। तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। स्टील मिल चल पड़े तो जहाज और टैंक भी यहाँ बन सकते हैं। तमाम PIDC फैक्ट्रियां अब बंद हो चुकी हैं। स्टील मिल को सियासी वजूहात पर चलने नहीं दिया जाता। हमारे लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। सरकार के तमाम वसाइल को लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। किसी मखसूस क्लास के लिए सरकार के वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जो सिर्फ 2% है। चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA शहरों में काम कर रहा है, देहात तक तो गया ही नहीं। देहातों में लोग पीरों के पास जाकर दम करवा रहे हैं। एक दफा जो बंदा करंटीना सेंटर पहुंच गया वो पैसे दिए बगैर भी बाहर वापस नहीं आ सकता। चेयरमैन NDMA जनरल अफजल खान ने जवाब दिया कि NDMA की वजह से 10 मिलियन PPPI किट तैयार हो रही हैं। 1187 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 300 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुल्क में इस वक्त माहाना 1 मिलियन किट्स तैयार की जा रही हैं। जरूरत से ज्यादा किट्स को एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में हर चीज का म्यार देखा जाता है, हमें म्यारी सामान चाहिए, मसला मुल्क की पैदावार का है ताकि रेवेन्यू बने और नौकरियां मिलें। पाकिस्तान में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है, हालात सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। हाजी सेंटर करंटीना पर 56 करोड़ खर्च कर दिए गए। हाजी कैंप खर्चे के बावजूद करंटीना सेंटर तो न बन सका, चलो हाजियों की बेहतरी हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम हुआ है कि भारत से भी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने भारत से अद्वियात मंगवाने पर एक्शन लिया है, भारत से अद्वियात मंगवाने की इंक्वायरी हो रही है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटार्नी जनरल की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 जून को होने वाली समाअत में हफ्ता इतवार के लॉकडाउन से मुतल्लिक वजाहत कर देंगे।
पंजाब और इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स हुकूमत खुद खोल रही है। कोरोना खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स, कहा अदालत का हुक्म सिर्फ सिंध के लिए था, शॉपिंग मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत तिब्बी माहिरीन की राय के बरखिलाफ जा रही है। अटारनी जनरल ने कहा कि अदालत की हफ्ता इतवार के लॉकडाउन से मुतल्लिक हुक्म से मुमकिन है हुकूमत मुतमिन न हो, लेकिन इस पर अमल किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। हमारी पूरे पाकिस्तान पर नजर है, आंख कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत हमारी गुजारिशात भी सुन ले, अदालत माहिरीन की कमेटी बनाकर रिपोर्ट तलब कर ले। लॉकडाउन खत्म हो गया, इसका नतीजा क्या होगा? हफ्ते में 2 दिन लोग मार्केट नहीं आएंगे तो वबा का फैलाव ज्यादा नहीं होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स हुकूमतें खोल रही थीं। अदालत ने हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक दिया था, बाकी मुल्क में मॉल्स खुल रहे तो सिंध के साथ तासब नहीं होना चाहिए। मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। अदालत का गुज़श्ता समाअत का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती एसओपीज से परेशान हैं। कहते हैं मौजूदा एसओपीज पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मुआशी कत्ल है, जबकि दूसरी जानिब मुसाफिर अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए ट्रांसपोर्ट चलने के मुंतजिर हैं। ये है फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड, जहां से पंजाब समेत दीगर सूबों को भी गाड़ियां जाती हैं। गाड़ी के पूरे खर्चे पर आधी सवारियां लेकर जाना और एसओपीज के तहत ट्रांसपोर्ट चलाना एक चैलेंज बन गया है, जिस वजह से सरकारी अड्डा भी तकरीबन बंद है। देखिए जी, हुकूमत की बात जो है वो तो माननी है, हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने खोला है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं जो सख्त एसओपी बनाए गए हैं ना, वो 1-2 दिन 4 दिन तो हम चलाएंगे, क्योंकि रोजी भी है और ये घाटा भी जो होगा उनको नज़रसानी करनी चाहिए। खसूसी तौर पर जो ये हमारी है ना जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर उनको खसूसी चाहिए, लेकिन ये एसओपी पे नज़रसानी जरूरी है। मोटरवे समेत बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। एसी वाली गाड़ियाँ और निजी लारी अड्डे भी बंद हैं, जबकि चालू रूट्स पर भी मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। ताहम एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं एसओपीज पर अमल करेंगे, मगर लास्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਨਾਮ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਨਾਮ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2-2 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜਿਹੜੇ एसओपी ने इन्हें नरम किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एसओपीज ट्रांसपोर्टर्स के लिए इंतहाई सख्त हैं। हुकूमत एसओपीज में नरमी करे। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कोरोना से निपटने के लिए सहूलियात मुहैया करने और एसओपीज बनाने के लिए 24 घंटों का टाइम दे दिया। कहते हैं पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना में मुब्तला होने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स का ताल्लुक पीआईसी से है। रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी। अगर 24 घंटों के अंदर प्रॉपर एसओपीज ना बनाए गए, पीआईसी को रिकॉग्नाइज ना किया गया, तो हम इस बात को बावर कराएंगे कि यहां पर आने वाले मरीज को पहले आगाह किया जाएगा कि ये आपके लिए सेफ अस्पताल नहीं है। पीआईसी के यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि अस्पताल के 48 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना की जद में आए हैं, जिनमें से 25 करंतना में हैं, लेकिन पीआईसी में अभी तक कोरोना से निपटने की सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकी। अस्पताल में डॉक्टर्स के पास सिर्फ 10 मास्क और 7 किटें इमरजेंसी की सूरत में मौजूद हैं। हमारे पास पिछले 10 दिनों में एवरेज के तौर पर 4 से 5 मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले। हमारे पास इस अस्पताल को कोरोना रिकॉग्नाइज कराने के लिए, कोरोना की फैसिलिटी के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी तक हुकूमत पंजाब ने कोई कदम नहीं उठाया। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि पीआईसी में दिल के मरीज आते हैं, लेकिन अस्पताल को कोरोना अस्पताल डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी तक हुकूमत की जानिब से 774 N95 मास्क दिए गए हैं, जबकि अस्पताल का अमला 2100 के करीब है। पीपीई किट्स की फराहमी भी नहीं हुई। अब तक 200 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमें जो N95 मास्क मिले उनकी तादाद सिर्फ 774 थी, जो कि अस्पताल की
अगर एक टाइम पर जो फोर्स काम कर रही है वो 2100 कुछ है, एक दिन में 2100 कुछ, यानी 2100 शायद 50 के करीब है, उसको 1/3 तक अभी तक मास्क मिला है जब से ये कोरोना शुरू है। पीआईसी के डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना के जो मरीज हमने रेफर किए उनमें से 9 मरीज जान की बाजी हार गए। हमारे 3 में से 2 प्रोफेसर कोरोना के शिकार हुए। हमारे 50% मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना मुस्बत आया है, लेकिन हम उन्हें शिफ्ट करने के काबिल नहीं। इंतजामिया को जब भी SOPs बनाकर दिए गए, आगे से जवाब आया कि हमारा अस्पताल कोरोना रेगुलाइज नहीं है। हुकूमत को अस्पताल में कोरोना से निपटने की सहूलियात और SOPs बनाने के लिए 24 घंटों का टाइम देते हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 49,86,000 से तजावुज कर गई। मौलिक वबा का शिकार 3,24,910 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दुनिया में 19,58,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 15,70,000 से ज्यादा हो गई। रूस में 3 लाख अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। स्पेन में 2,78,000, ब्राजील में 2,71,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि बरतानिया में 2,48,000, इटली में 2,26,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। अमेरिका में कोरोना से मुतालिक डेटाबेस पे रद्दोबदल के लिए दबाव डाला जाने लगा। रियासत फ्लोरिडा में कोरोना से मुतालिक डेटा पोर्टल बनाने वाली साइंसदान को एदाद शुमार में तब्दीली से इनकार पर बरतरफ कर दिया गया। रेबिका जॉन्स ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर के ओहदे पर काम कर रही थी। रेबिका ने अमेरिका मीडिया को ईमेल में बताया कि उन्होंने अकेले 2 जबानों में अलग अलग एप्लीकेशंस तैयार की। 6 मुनफरिद नक्शों के जरिए 5 लाख अफराद का डेटा यकजा किया गया, जिसका मकसद था कि फ्लोरिडा के लोगों और तहकीककारों को कोरोना की हकीकी सूरत हाल मालूम हो सके। उनका कहना था कि इसके लिए उन्होंने बिला मुआवजा 2 माह तक 16 घंटे काम किया। डेटा में तब्दीली से इनकार पर उन्हें फ्लोरिडा के महकमे सेहत से ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर के ओहदे से हटा दिया गया। रेबिका जॉन्स ने तहकीक करने वालों को खबरदार किया कि वो उनके पोर्टल से डेटा लेने में एहतियात करें, क्योंकि इसमें मुतवक्के तौर पर तब्दीलियां कर दी जाएंगी। फैसलाबाद में महंगाई माफिया की चांदी। रमजानुल मुबारक में महंगाई माफिया खुद जेबें भरने में के बाद भी ईद पर महंगाई का तूफान लाने को तैयार है। हुकूमत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ना ही महंगाई कम करने के लिए कोई इकदाम उठा रही है। माह मुकद्दस में महंगाई माफिया की खूब चांदी रही। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मंजर से गायब होने की वजह से दुकानदारों और रेडीबानों ने शाय खुर्दनोश, फल, सब्जियां, खजूरें और गोश्त मन मर्जी के निरखों पर फरोख्त किया। हुकूमत माह मुकद्दस में महंगाई पर काबू पाने के लॉलीपॉप से अवाम को मुतमिन करने की कोशिश करती रही, मगर ताकतवर महंगाई माफिया के सामने अवाम समेत हुकूमत की एक न चल सकी। हुकूमत पूछती है माफिया कौन है, तो फैसलाबाद के शहरी महंगाई माफिया के बारे में क्या कहते हैं? जो माफिया की बात करते हैं, माफिया तो हुकूमत के आसपास ही बैठे हैं, वो दूर नहीं बैठे हुए। ये आटा माफिया जो है, चीनी माफिया है, जो महंगाई की माफिया है, जो मेडिसिन माफिया है, ये सब लोग आप बिल्कुल हुकूमत के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं और इनसे वो ज़्यादा ताकतवर हैं। ना ये उन पर हाथ डाल सकते हैं, ना ये डालेंगे ही। जो चीज़ रमज़ान से पहले, जैसे ये चिकन है, ये 140 रुपए किलो बिक रहा था, अब रमज़ान में 270 रुपए है। ये क्या पेट्रोल कम होने की वजह से है? ये महंगाई कम की है। सब्जियां जो है वो पहले से ज्यादा महंगी हैं, फ्रूट है से ज्यादा महंगा है, और खजूर जो पहले 150 रुपए किलो बिक रही थी, अब जो रमजान में 400 रुपए किलो बिक रही है। तो ये कौन सी महंगाई कम की है? माफिया माफिया माफिया, पाकिस्तान में हमेशा ये लफ्ज बारहा दोहराया गया। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो भी माफिया, नून लीग की हुकूमत हो तो भी माफिया, PTI हुकूमत एक तब्दीली के नाम पे आई थी, लेकिन ये भी माफिया। अभी हुकूमत के अंदर अगर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने चीनी का बहरान पैदा किया, जिन्होंने गंदम का बहरान पैदा किया, तो फिर माफिया और कौन है? इनका एहतसाब कौन करेगा? कौन इनसे पूछेगा? दुकानदारों और रेडीबानों के पास रेट लिस्टों का आवेजा न होना जिले इंतजामिया की नाकामी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार कर दिया। इंसानी नस्ल कुशी की रोकथाम के मुशीर एडम डेनिंग का कहना है कि भारत में अक़लियतों से नारेवा सलूक आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। उन्होंने कहा कि भारतीय रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना इंतहाई तशवीशनाक है कि मुसलमान बराबरी वाली कैटेगरी में नहीं आते और तमाम इंसान बराबर नहीं। ऐसे वक्त में नफरत और तकसीम के फैलाव के बजाय इत्तेहाद और यकजहती का फरोग इंतहाई जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान भारत में अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों में न हिकमत अमली है न इंसानियत। हुकूमत के हर फैसले का मकसद आवाम में दहशत और खौफ व हिरास फैलाना है। मोदी भारतीय अक़लियतों पर तशद्दुद करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अक़लियतों के गम में दुबला हुआ जाता है। भारत का वजीर आजम बनते ही इंतहा पसंद मोदी के तासुब और तंग नजरी ने देखते ही देखते भारत के चेहरे पर पड़े जमहूरियत, सेकुलरिज्म, बुनियादी शहरी हुकूक, आजादी इजहार राय और तहम्मुल बर्दाश्त के तमाम पर्दे खुरच कर उतार दिए। 1.5 अरब आबादी के इस मुल्क में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को जिस सलूक का निशाना बनाया जा रहा है उसकी मिसाल मुहज़्ज़ब मुल्कों में नहीं मिलती। मुस्लिम अक़लियत को सिर्फ तालीम, सेहत और दिगर शहरी सहूलियात के हवाले से महरूम रखा जाता है, बल्कि वो माशी तौर पर भी पसमानदगी की चक्की में पिस रहे हैं। उनकी जिंदगियां, उनके घर, उनका माल, उनके कारोबार कुछ भी महफूज नहीं। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने नफरत की आग भड़का दी जाती है और फिर देखते ही देखते मुसलमानों को निशाने पर धर लिया जाता है। मोदी की इंसानियत से आरी पॉलिसी में हिंदुत्व के प्रचार का राग अलापा जाता है। कोरोना आने के बाद जनता के लिए एहसास की मुकम्मल कमी देखी जा सकती है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खमियाजा भारतीय जनता के गरीब तबके को भुगतना पड़ रहा है। अचानक लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम मुअत्तल हो गया। शहरों में मजदूरी के लिए आए गरीब लोग काम न मिलने से भूख और बीमारी के डर से आबाई शहरों को रवाना होने के लिए बस अड्डों पर जमा हो गए और बस न मिलने पर सैकड़ों मील का पैदल सफर करके आबाई शहरों की तरफ रवाना होने पर मजबूर हो गए। मोदी और उसके बुलवाई भारत में आग और खून की होली खेल रहे हैं और हुक्मरान लालची और डोंगी मीडिया पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अक़लियतों के गम में दुबले हुए जा रहे हैं। लाड़काना में अफसोसनाक वाकया, घाड़वा नहर में 3 बच्चियां डूब गई, 2 की लाशें निकाल ली गई, एक की तलाश ताहाल जारी है। गर्मी की वजह से नहाने के लिए पानी में उतरने वाली बच्चियां तेज लहरों की नजर हो गईं। गहरे पानी में डूबने वालों में 7 साल की सेठानी, 7 साल की रुबीना और 12 साल की खालिदा जाफरी शामिल हैं। खबर मिलते ही अहले इलाका ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली, जबकि एक बच्ची रुबीना की तलाश अब भी जारी है। मंडी बहाउद्दीन में सोहावा मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ा। अफसोसनाक हादसा पेश आया सोहावा मोड़ के करीब सरगोदा हाईवे पर, जहां तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बैठे अफराद पर चढ़ गया, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ। सोहावा मोड़ में ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर ये दोनों आदमी अपनी दुकान के सामने बैठे थे और ड्राइवर से बेकाबू होकर इनको जा लगा। ये 2 आदमियों की डेथ हो गई है, एक जो है वो जख्मी है, उसकी कंडीशन बेहतर बता रहे हैं। हादसे में जान की बाजी हारने वालों की शनाख्त असलम और एहसान के नाम से हुई है, जबकि मजहर तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज है। ट्रक है किंग चौक को जानो सरगोदे जा रहे हैं, सोहावा मोड़ तो अगे आया ना, अगे 2 बंदे असलम ते एहसान ये दोवें बैठे हैं कुर्सियों पे, एक मोटरसाइकिल दे जो सौदा लै रहे हो जनाब ट्रक उत्ते चढ़ गया, अगे खंभा तोड़िया, फिर जनाब नाला उहदे विच जा गया। पुलिस के मुताबिक बेकाबू ट्रक इन अफराद को कुचलता हुआ बिजली के पोल से टकरा गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। फराइज की अदायगी, अफसरान की गफलत, घर का इकलौता कफील जान की बाजी हार गया। दर्जा चाहरुम के मुलाजिम नासिर सिंधी को अफसरान ने हुक्म तो दिया लेकिन हिफाजती सामान नहीं दिया। बिजली के खंबे पर बैनर लगाते करंट लगने से जाँ बहक हो गया। तरक्याती कामों के बैनर लगाते हुए बल्दिया कमालिया का मुलाजिम अफसरान और इंतजामिया की बेहिसी का शिकार हो गया। चीफ ऑफिसर बल्दिया ने नासिर सिंधी की शहर में तरक्याती कामों के इश्तिहारी पैनाफ्लेक्स लगाने की ड्यूटी लगाई, लेकिन हिफाजती सामान न दिया। बिजली के खंबे पर बैनर लगाते हुए नासिर सिंधी को करंट लगा, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। 2 घंटे तक उसकी मदद के लिए कोई न आया।
और 8 बहनों का इकलौता भाई 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप जान की बाजी हार गया। लॉयकीन म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के सामने लाश रखकर एहतजाज करते रहे। इस्लामाबाद में सच न्यूज के ज़ेरे एहतमाम हिमायत मजलूमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्कदा हिमायत मजलूमीन कॉन्फ्रेंस में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज, मेंबरान इस्लामी नजरियाती कौंसिल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अलामा आरिफ हुसैन वैदी और पीर चिरागुद्दीन शाह का कहना था कि हमें मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बैतुल मक़दस उम्मत मुस्लिमा का किबला अव्वल है, अल कुद्स की आज़ादी तक खामोश नहीं बैठेंगे। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हमारे फ़लस्तीनी भाई एक बहुत मुश्किल का शिकार हैं, और वो मुश्किल एक तो इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है। फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन पर वापस लाने के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करना होगी। इसराइल के नाजायज़ और नापाक वजूद के खात्मे के लिए तहरीक तेज़ करना होगी। फ़लस्तीनियों की शनाख्त ख़त्म करने की नापाक साजिशों को बेनकाब करना होगा। हमेशा फतह मुस्तज़फ़ीन और मज़लूमीन की हुई है और ज़ालिमों को हर दौर में मुँह की खानी पड़ी है और शिकस्त हुई है। फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, ये किसी फ़िरक़े या किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो आलम इस्लाम से है। मुकर्रिरीन का कहना था कि फ़लस्तीन कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो गई है। आलमी बिरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? शहादतें दे रहे हैं, ये तो जालिम के सामने खड़े हैं। जो बैतुल कुद्स की आज़ादी का मसला है, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफार्म पे हो जाना चाहिए, तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए और मिल के इस एहतजाज को रिकॉर्ड करना चाहिए। हिंदुस्तान राइट पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, इंसानियत की तस्वीर न सिर्फ मकबूल है जो उनकी लेकर है, हिंदुस्तान के मुसलमान को देखिएगा, आपने उनके लिए भी खड़ा होना है। फ़लस्तीनियों ने अपना ज़मीन नहीं बेचा। फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों, जब ये मसला शुरू हुआ 47 में, 47 में और 48 में, ये दोनों रीजन्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था, और ब्रिटिश का जो उन्होंने किरदार अदा किया फ़लस्तीन और कश्मीर में, ये हमें पता होना चाहिए। 10, 15, 20 साल में जहाँ पर शाम में जो हो रहा है, नजफ में जो हो रहा है, करबला में जो हुआ है, कश्मीर में जो हुआ है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद आज ये एक इज्तिमा नकवी साहब ने हिम्मत की, चंद दोस्तों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कम से कम ये पैगाम ज़रूर जाएगा कि कश्मीरियों के साथ या फ़लस्तीनियों के साथ या बाकी जो भी मुसलमान हैं उनके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि किबला अव्वल की आज़ादी और इसराइल के खात्मे से दुनिया इस्लाम की मुश्किलात का खात्मा होगा। हम ऐद करते हैं कि हम मजलूमों की हिमायत जारी रखेंगे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। भारत से गैर कानूनी अद्वियात बरामद करने का मामला मुआविन खुसूसी बराए सेहत के लिए बड़ा धचका। वजीर आजम ने जफर मिर्जा के माली इख्तियारात खत्म कर दिए। रिपोर्ट करेंगे सजाद काज़मी। भारत से अद्वियात बरामद करने के मामले पर वजीर आजम का एक्शन। वजीर आजम इमरान खान ने भारत से अद्वियात बरामद के मामले पर नोटिस ले लिया और डॉक्टर जफर मिर्जा के माली मामलात के इख्तियारात खत्म करने की हदायत कर दी है। माली मामलात से मुतल्लिक समरियां बराए रास्त वजीर आजम को भिजवाई जाएंगी। इमरान खान के इस फैसले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर माली मामलात में बेज़ाब्तगियों के सबूत मिल गए थे तो वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी को ओहदे से हटाया क्यों नहीं? अगर सबूत नहीं थे तो इख्तियारात महदूद क्यों कर दिए गए? अद्वियात कहां और किसकी इजाजत से इस्तेमाल हुई? वजीर आजम सेक्रेटेरिएट ने बतौर इंचार्ज वफाकी वजीर कौमी सेहत तमाम समरियां भिजवाने और मंजूरी के लिए हदायत कर दी है। डॉक्टर जफर मिर्जा वजीर मुमलिकत के तौर पर वजारत के तमाम माली और इंतजामी मामलात बतौर इंचार्ज समरियों की मंजूरी के बगैर अहकामात जारी करते रहे थे। गरीब और सफेद पोश अफराद की मदद के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद खूब सराह रहे हैं। ये बहुत अच्छा मरहला है कि कोरोना वबा के इस माहौल में सच न्यूज़ की तरफ से जो खिदमत की नेकी की टोकरी की एक मुहिम चला रहे हैं कि जिसमें लोग आगे बढ़कर तावन करें और मुस्तहिक लोग अपने ज़मीर के मुताबिक जो है कि अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें। तो मैं सच न्यूज़ के
خدمت کے اس میدان میں نیکی کی اس ٹوکری کی مہم کی تعریف بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو یہ پروگرام ہے نیکی کی ٹوکری کا، یہ بڑا ایک زبردست ہے. اس میں ایک غریب آدمی کو جو بھی حسب توفیق اس کو ہے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، اور ہم عام آدمی عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں. اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سفید پوش لوگوں کے لیے یہ ٹوکری رکھی ہے، ایک نیک عمل کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی گنجائش نہیں تھی، حالات کے مطابق انہوں نے ٹوکری رکھی ہے اور اس پر کام ہوا ہے. سچ نیوز نے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا آغاز کیا ہے، اس سے غریب طبقہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. اگر کوئی 5 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ 10 روٹیوں کے تندور والوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ 5 روٹیاں بھائی مجھے دے دو، اور 5 روٹیاں جو ہیں یہ اس ٹوکری میں ڈال دو، اور جو نیڈی آدمی آئے، جو ضرورت مند ہے، وہ وہاں سے بغیر کسی بات کے، وہ اس ٹوکری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ روٹی لے کے اپنا جو ہے وہ فیڈ کر سکے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی. سچ نیوز چینل کی بہت ہی پیاری کاوش نیکی کی ٹوکری، جس سے سفید پوش طبقہ، غربا، مساکین اور مستحق افراد مستفید ہو رہی ہیں، اور میری تمام لوگوں سے اور عوام سے اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ان کی کافیوں کو بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کی ٹوکری جس میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے جن مخیر حضرات ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں سپورٹ کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. سچ ٹی وی کی اس بہت اچھی کاوش کو سراہتے ہیں. روٹی اسکیم جو انہوں نے شروع کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا، ان لوگوں کا سفید پوش کا جو خرید نہیں سکتے ہیں. لہذا عوام کو چاہیے کہ اس اسکیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کار خیر میں ثواب بھی کمائیں اور دعائیں بھی لیں. ملتان کے چند دوست مسیحائی کے ذریعے دکھی انسانیت کی عملی خدمت کر رہے ہیں. امداد باہمی کے ذریعے ان نوجوانوں نے جدید ترین مفت ہاسپٹل بنا کر شہر کے غربا کے دل جیت لیے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں احمد کاشف. اقبال نے اپنی شاعری سے جوانوں میں ستاروں پر کمند ڈالنے کا ولولہ پیدا کیا تو اپنے ایک شعر میں خدا سے دعا کی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. ملتان کے چند نوجوان دکھی انسانیت کی عملی خدمت سے نیکی کی مثال بن چکے ہیں. ظہیر بابر، مہر علی اور ان کے دیگر دوستوں نے امداد باہمی کے ذریعے شہر بھر میں جدید ترین ہسپتال بنا لیے. 10 روپے کی پرچی کے ذریعے سینکڑوں روپے کی ادویات بھی فراہم کر رہے ہیں. یہ ہاسپٹلز ہیں، 3 ڈسپنسریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں. 150 فیملیز ہیں جن کو ہم راشن دیتے ہیں جو ڈیزرونگ کیٹیگری میں غربت کی لکیر سے بھی نیچے. اور مین برانچ ہماری معصوم شاہ روڈ برانچ ہے، اور بس اس کو ہم مل جل کے چلا رہے ہیں. اللہ کا کام ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا موٹیو ہے. میں الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جس سے پیشنٹ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں. کرونا وبا کے باعث جہاں مسیحائی مشکل ہو گئی، ملتان میں ان نوجوانوں کے ہسپتال عوام میں شفا بانٹنے کے لیے ہمہ وقت میسر رہے. روزانہ ہزاروں مریض یہاں سے ادویات لیتے ہیں اور ان نوجوانوں کے حصے میں دعاؤں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. میری وائف کو تھا ٹی بی، وہ ان کا علاج یہاں فری ہوا ہے. میری والدہ یہ ساتھ بیٹھی ہیں، ان کا علاج یہاں ہوا ٹی بی کا، دوسری دفعہ ان کا ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے لیکن فری علاج ہوا اور 100% میں ماشاءاللہ بالکل کلیئر ہوا. ایک دہاڑی دار مزدور مسیحائی کے لیے جس ہسپتال جانے کا صرف خواب دیکھ سکتا ہے، وہ تمام قیمتی مشینری اور ادویات اسے صرف چند روپوں میں مل جاتی ہیں. ملتان کے غربا ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا جو آج نیکی اور خیر کی عملی تصویر ہے. غربت و یاسیت کی سنگلاخ زمین پر احساس کے خوشنما پھول کھلانے والے ایسے نوجوانوں کی وجہ سے ہی انسانیت مہک رہی ہے. کیمرہ مین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان. چاند دیکھنے سے لے کر عید کے پیغامات تک ٹیکنالوجی نے ہماری روایت تبدیل کر کے رکھ دی ہے. عید کارڈز کے ذریعے عید مبارکباد کی روایت سوشل میڈیا کے دور میں دم توڑ گئی. اسی پر دیکھیں خصوصی رپورٹ سجاد قاسمی کی. نئے زمانے کے بدلتے انداز میں پیغام رسانی کے انداز بھی بدل گئے. عید کی آمد کے موقع پر اپنے پیاروں کو خوشیوں بھرے نیک پیغامات بھجوانے کے لیے عید کارڈز کا سہارا لیا جاتا تھا. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ شہر کے تمام بڑے چھوٹے بازاروں اور گلی محلوں میں بھی عید کارڈز کے سٹالز لگ جایا کرتے تھے جس میں مختلف ڈیزائنز اور فیملی اداکاروں، کھلاڑیوں کی تصویر والے عید کارڈز دستیاب ہوتے تھے. خریداری کر کے اچھے سے اچھا کارڈز ڈھونڈے جاتے اور پھر سب سے الگ شیئر کے لیے صلاح مشورہ کیا جاتا تھا. رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہی شہری گھروں کی چھتوں پر نظریں جما کر
फैमिलीज के साथ ईद का चांद देखने के लिए मौजूद होते थे। कई शहरी टीवी स्क्रीन्स पर ऐलान का इंतजार करते थे। टेक्नोलॉजी की आमद ने जहां कई चीजें आसान बनाई, वहीं हमारी खूबसूरत यादों को भी किस्सा माजी बना दिया। अब ईद के चांद से मुतल्लिक महीनों पहले ट्वीट कर दिए जाते हैं और ईद कार्ड्स के बजाय सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खाना पूरी कर दी जाती है। इससे न सिर्फ कई दिहाइयों पुरानी रवायत दम तोड़ गई, बल्कि माशी तौर पर इसके नुकसानात सामने आए। ईद कार्ड्स छापने की एक बहुत बड़ी सनत बंद हो चुकी है। मुल्क भर की तरह कराची से भी आज ट्रेन परदेसियों को लेकर उनके आबाई घर रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ अशरफ सोलंकी मौजूद है, बताइएगा अशरफ सोलंकी। आज इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूं और मुल्क भर की तरह कराची से भी मुख्तलिफ शहरों की तरफ ट्रेनें जो है उनकी आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई है और इस वक्त भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अवाम एक्सप्रेस है जो कि सुबह आम दिनों में सुबह के 7 बजे जाती है, लेकिन आज चूँकि लॉकडाउन की वजह से पहली दफ़ा ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है तो ये तकरीबन 10 बजे यहाँ से रवाना होगी। मैं आपको बताऊं कि ट्रेन शुरू करने से पहले SOPs का जो है एहतमाम किया गया है। ट्रेन कैंट स्टेशन में दाखिल होते वक्त ही सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है ताकि जो शहरी यहाँ अंदर मुसाफिर आ रहे हैं वो सैनिटाइज होके अंदर दाखिल हों, जबकि ट्रेन के अंदर भी जो मुसाफिर बैठे हुए हैं वहाँ पर भी फासले का ख़ास इंतज़ाम किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का इंतज़ाम किया गया है। ट्रेन बंद होने से कबल शहरी काफ़ी जो है यहाँ से रवाना हो गए थे, तो ये सूरत हाल है और मुख्तलिफ औकात में ट्रेनें जाएंगी। इसके बाद जो है 1 बजे भी ट्रेन रवाना होगी, रात 10 बजे जो है तक ट्रेनें यहाँ से जाएंगी जो कि मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाएंगी। जी, अमरीका में ईरानी ऑनलाइन मालियाती खिदमात की कंपनी और उसके 2 सीनियर ओहदेदारों पर ईरान पर अमरीका पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मैनिसोटा की विफाकी अदालत ने ईरानी ऑनलाइन कंपनी पेमेंट 24 के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद शाहिद और ओहदेदार वहीद वली पर अमरीकी फौज के खिलाफ साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी। ईरानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद सैयदा को बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया से हवालगी के बाद अमरीकी अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। उमर अकमल ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट के हेड बॉय पर PCB ने 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। कौमी टीम के जारह बल्लेबाज उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। डिसिप्लिनरी पैनल ने उमर अकमल को एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 रोज के अंदर आजाद एडजुडिकेटर की तकर्री करेगा। 20 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन कोड की दफा 471 के तहत उमर अकमल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से जारी तहकीकात शुरू कर दी गयी थी। इस मुअत्तली की वजह से उमर अकमल पाकिस्तान सुपर लीग 5 में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। बाद अज़ां ये खबरें सामने आई कि उमर अकमल को बुकी ने मैच फिक्सिंग की पेशकश की, ताहम वो इसकी इत्तला बर वक्त PCB को देने में नाकाम रहे। जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी। गुजरांवाला के आर्टिस्ट हजरात ने कैनवस पर मुख्तलिफ रंग बिखेर कर कोरोना से बचाव से मुतालिक आवाम को आगाही फराहम की। मोहम्मद अली इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जिंदगी रुकती नहीं के नाम से गुजरांवाला आर्ट काउंसिल हॉल में नुमाइश लगाई गई, जिसमें फनकारों ने कमाल महारत से कैनवस पर खूबसूरत पेंटिंग से अया किया कि ये वक्त भी आखिर गुजर ही जाएगा। आर्टिस्टों ने पैगाम दिया कि कोरोना वबा से जंग जीतनी है तो एहतियात का हथियार लाजमी इस्तेमाल करना होगा। नुमाइश में 40 से जायद पेंटिंग्स पेश की गयी जो कोरोना से मुतल्लिक आगाही देने के साथ कोरोना के मनफी और मुस्बत असरात की भी खूब अक्कासी कर रही थी। मैंने ये दिखाया है कि जो बच्चे हैं वो पहले ज़ाहिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बाहर जाते थे, आउटिंग करते थे, लेकिन अभी जो आजकल बच्चे काफ़ी देर से घरों में हैं, तो ये जो बच्चा है ये मिस कर रहा है अपने फ्रेंड्स को और अपने सोशल सर्कल को। स्टूडेंट्स ने कोरोना क्राइसिस को मुख्तलिफ जावियों से देखते हुए अपने रंगों से कैनवस पे भरपूर अपने फ़न का मुजाहरा किया। उनका फ़न ये पैगाम देता है कि गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तानी कौम SOPs को फॉलो करते हुए भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती है। ये पैगाम दिया कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, रोज़मर्रा के जो काम काज चलते रहते हैं, ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है और चाहे जो मर्जी हो जाए ज़िंदगी रुकती नहीं है। ये नुमाइश जहां आगाही से भरपूर थी तो वहीं 2 माह से बंद आर्ट काउंसिल हॉल की रौनकें भी वापस लौट आई हैं। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।